ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. محترم سامعین کرام اور مشاہدین، اسلامی برادران اور خواتین، عزیز بچوں اور بچیاں، پہلا درس جو ہمارا ہوا تھا قرآن اور حدیث کا رتبہ، شریعت میں اس کی پوزیشن اور اس کی منزلت کے تعلق سے. آج بھی پروگرام اسی ٹاپک سے متعلق ہے. وجہ کیا ہے کہ میں اس ٹاپک کو بڑھاوا دے رہا ہوں اور کئی ایک پروگرام میں اس کو میں لینا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر جتنی گمراہی دکھ رہی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں، ان پڑھ کی بات یہاں نہیں ہے، پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، جن کے پاس شریعت کا علم ہے، وہ جب راستے سے ہٹتے ہیں تو پھر پوری دنیا کو راستے پر لانے والا کوئی نہیں ہے. اور پڑھے لکھے لوگ راستے سے کیوں ہٹتے ہیں؟ جب کتاب و سنت کا درجہ اور اس کا رتبہ اور اس کی پوزیشن جو ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی فضیلت دیگر کلام پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت دیگر لوگوں پر ہے. علماء کا ایک گروپ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات تشریف فرما ہو، آپ کس کو پوزیشن دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہیں پنڈال لگا ہو، خیمہ ہو، بیٹھکا ہو، محفل رچائی گئی ہو، بڑے بڑے علماء کرام جبہ و دستار والے موجود ہوں، اور وہیں ہمارے نبی، تمام نبیوں کے سردار، تمام اولاد آدم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو سارے لوگوں کے بیچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ ہوگا. تو سارے لوگوں کے بیچ میں جیسے اللہ کی ذات ہے، ایسے سارے لوگوں کے کلام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت ہے. اور سارے لوگوں کے بیچ میں جو پوزیشن، جو درجہ، جو رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی درجہ، وہی رتبہ آپ کے کلام کا ہے، آپ کی احادیث کا ہے، آپ کی سنت کا ہے. جہاں اللہ کا کلام ہو کسی کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں. جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو دنیا کے کسی فرد کے فرمان کی کوئی قیمت نہیں، مقابلہ کی بات ہی نہیں. میری بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقابلہ کریں تو میں کہوں گا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. مقابلہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی کی بات کا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدون مقابل آپ رسول ہیں، بغیر کسی کمپٹیشن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جہاں موجود ہو، کسی اور کے گفتار اور کردار اور اعمال اور اقوال کو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 33، آپ کوٹ کر لیجئے، ٹائم ملے گا تو آپ دیکھیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم.
اے مومنو اطیعوا اللہ، اللہ کے اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کے اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ بات واضح ہے، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت سے آپ اگر ہٹیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے آپ اگر ہٹیں گے، تو پھر آپ کے اعمال کے صحیح رہنے کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہم اور آپ چلیں گے تو ہمارے اور آپ کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ دنیا کا کوئی بھی مفتی جو چاہے فتویٰ دیتا رہے۔ اس آیت میں یہی بات کہی جا رہی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ دنیا میں بہت سارے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آتے ہیں، عقائد سے متعلق ہوتے ہیں، احکام سے متعلق ہوتے ہیں، نکاح اور طلاق کے معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، خرید فروخت اور تجارت سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ جب کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو علماء کے اقوال مختلف ہوتے ہیں۔ گھر بیٹھے اگر آپ اتصال کرتے ہیں تو کوئی عالم کچھ فتویٰ دیتا ہے، کوئی عالم کچھ فتویٰ دیتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حل کیا ہو سکتا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ قرآن اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ آیت ملے گی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ دینی مسئلہ ہے نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ یعنی اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف لوٹاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی موجود سنتوں کی طرف لوٹاؤ۔ یہی معنی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھ کر کے پرورش کی، جن کی اور جن کے لیے دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ اس بچے کو دین کے اندر سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سے سکھلا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور عبداللہ ابن عباس چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود، کم سن ہونے کے باوجود، تمام صحابہ پر تفسیر کے باب میں بھاری ہو گئے، سب پر فوقیت لے گئے۔ انہوں نے یہی تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی مسئلے میں لڑ پڑو تو اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ باحیات تھے، جب اس دنیا میں آپ تھے، ہم لوگوں کے مابین چلتے پھرتے تھے، تو آپ کی ذات کی طرف جاؤ، آپ کے گھر پر جاؤ، آپ کی مسجد میں جاؤ، ملاقات کرو، آپ سے اپنا مسئلہ پیش کرو جیسے صحابہ پیش کرتے تھے۔ لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، جیسے سب انسان کے لیے انتقال لکھا ہوا ہے، موت سب پر طاری ہونے والی چیز ہے، موت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ کی جو احادیث موجود ہیں ان کی طرف لوٹاؤ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول ہیں اور آپ کا دین بھی آخری ہے، اس وجہ سے قیامت تک آنے والے مسائل قرآن اور حدیث سے تلاش کیے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے، کسی مسئلے کو میں نہ تلاش کر سکوں، دوسرے کے پاس جائیں گے تو وہ تلاش کرے گا، ہو سکتا ہے وہ دوسرا بھی نہ تلاش کر سکے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو وہ حل کرے گا کہ ہاں قرآن میں اشارہ موجود ہے اور فلاں حدیث میں موجود ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ حل بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی مسئلے میں لڑ پڑو، جھگڑ پڑو، تو اس جھگڑے کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، انہی دونوں کی طرف لوٹاؤ۔ یہاں ایک بات اور ہم کہیں گے، اسی آیت کو تھوڑا اور دور سے آپ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے ولی امر کی اطاعت کرو، یعنی حاکم کی اور علماء کی اطاعت کرو۔
तफसीर में दोनों की बातें आई। उसके बाद फरमाया अल्लाह ताला ने फ़इन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, लेकिन जब झगड़े की बात आ जाए तो इताअत तो तीन की करनी थी ना, तीन की तरफ वापस करने को नहीं कहा अल्लाह ताला ने, इलल्लाहि व रसूल, दो की तरफ बस। और इताअत किन की? शुरू से देखिए आयत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। लेकिन जब झगड़ा हो जाए तो हल तलाश करेंगे अल्लाह के पास, रसूल के पास, वली अम्र यहां नहीं। क्यों भाई? क्योंकि झगड़े का हल जब आप हमारे पास तलाश करेंगे तो मैं कुछ और हल करूंगा, दूसरे आलिम के पास जाएंगे तो कुछ और हल करेगा, फिर उम्मत में इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। लिहाजा हर फर्द झगड़े का हल किताब सुन्नत में ढूंढे, वही इत्तेफाक मुमकिन है, और वही महवर और मरकज है शरीयत का, वही मसदर और मंबा है शरीयत का, वही सोर्स है शरीयत के मसाइल का, कुरान और हदीस, वही तलाश कर। बसा औकात हम लोग कहते हैं कि हम तो आम आदमी हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं आलिम से कि कुरान से फतवा दीजिए, हदीस से फतवा दीजिए। एक देहाती आदमी, मदीना का वाकया, एक मालदार आदमी के घर में उसका बच्चा मजदूरी कर रहा था। उसका लड़का जिसके घर में मजदूरी कर रहा था, उसकी बीवी पर वाक़ हो गई बदकारी की। कुछ उलमा के पास मुकदमा पहुंच गया, उन्होंने जो चाहा फैसला किया, कहा कि तेरे बेटे पर 100 बकरियां हैं जुर्माना, उसने बकरी दिया 100। किसी ने कहा कि भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, जाकर के वहां फैसला तलब करो, देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फैसला करते हैं। वो आदमी पहुंच गया, कहा इक़्दि बिकिताबिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे इस मसले को हल कीजिए अल्लाह की किताब की रोशनी में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आमी आदमी, गंवार आदमी, जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, तुम्हें किताब से क्या लेना देना है। नहीं, आपने कहा मैं अनकरीब अल्लाह की किताब की रोशनी में फैसला करूंगा। देख, तेरा बेटा गैर शादीशुदा है, उस पर 100 कोड़े लगेंगे, और तेरी 100 बकरियां जो जुर्माने में लोगों ने वसूल की है, तेरी बकरियां तुझे वापस मिलेंगी। उग़दु या उनैस, और ऐ उनैस, जाए फला की बीवी के पास, अगर वो इकरार करती है कि वाकई बदकारी की है, फरजिमहा, तो उसको रजम कर दे, क्योंकि वो शादीशुदा है। मसला यहाँ यह है कि उस देहाती ने हल जब तलाश किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की किताब की रोशनी में मैं फैसला करूंगा। आजकल हम और आप जब उलमा के पास जाते हैं तो जसारत करें कहने की कि अल्लाह के वास्ते किताब सुन्नत से हवाला दे दीजिए, अल्लाह के वास्ते कुरान हदीस की रोशनी में हल कर दीजिए। आप ये ना कहिए, आप अपने जैब से बताइए, आप फला मसलक फला फकी मसला को वादे कीजिए, आप फला इमाम के पास के रोशनी में हल कीजिए, या फला फिक़ह की रोशनी में हल कीजिए। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, झगड़ पड़ो तो फिर अल्लाह की तरफ वापस करो और रसूल की तरफ वापस करो। ये उस कुरान में मौजूद है जिस कुरान में कहा गया है क़ीमुस्सलात, सलात कायम करो, हम कायम करते हैं। जिसमें कहा गया है आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, हम ज़कात अदा करते हैं। जिसमें कहा गया है हज करो, हम हज करते हैं। उसी कुरान के अंदर ये मौजूद है कि अगर झगड़ते हो किसी मसले में तो कहाँ हल तलाश करेंगे? अल्लाह की किताब में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यही वो चीज है जो हमारे और आपके डिसबैलेंस होने को ये चीज दुरुस्त कर देगी। हम भी वही तलाश करेंगे, मिलेगी चीज। हमारा दूसरा भाई भी वही तलाश करेगा, उसको भी वही चीज मिलेगी। हम दोनों एक साथ बैठ जाएंगे कि हम लोगों का मसला तो कुरान में मौजूद है, लेकिन आप दौड़ेंगे मशरिकी के पास, कोई दौड़ेगा मगरिबी के पास, कोई दौड़ेगा शुमाली के पास, कोई दौड़ेगा जनूबी के पास, तो मसला फिर हमारा और आपका मजीद इख्तलाफ का होता चला जाएगा। वो उस इख्तलाफ को हम और आप हल नहीं कर सकते। लिहाजा कुरान और हदीस की कीमत यह है कि दुनिया के मसाइल का हल हम और आप किताब और सुन्नत में तलाश करें, तभी हमारे और आपके माबैन इत्तेफाक मुमकिन है, वरना ता क़यामत, बल्कि कह लीजिए क़यामत की सुबह तक मुसलमानों में इत्तेफाक मुमकिन नहीं है। रही बात आरा में इख्तलाफ, मशवरे में इख्तलाफ, इसमें कोई मसला नहीं है।
मीटिंग बैठती है, आप देखते हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मीटिंगें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होती थी। ग़ज़वे खंदक के मौका पर आपने मीटिंग की, ग़ज़वे उहद के मौका पर आपने मीटिंग की, बद्र के मौका पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग की। बहुत सारे मसाइल में, वाक़ई इफ़्क में जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, वहाँ अपने सहाबा के साथ मशवरा किया। तो जो नबी थे, जो अल्लाह ताला के इशारे पर चलते थे, उनको भी अल्लाह ताला ने कहा था वशाविरहुम फिल अम्र, जब कोई मसला दरपेश हो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोगों से मशवरा कर लीजिए। आज हम बड़ा से बड़ा काम कर जाते हैं, शरई मसला है तब भी, गैर शरई मसला है तब भी किसी से मशवरा लेने की जहमत नहीं करते। घर में बड़ा बेटा है, पढ़ा लिखा है, उससे भी नहीं पूछते। बीवी है जो जिंदगी भर की साथी है, उससे भी कुछ नहीं पूछते। जरा सोचिए कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इशारे पर चलते थे, जब मसला दरपेश हो तो अल्लाह ताला ने कहा कि वशाविरहुम फिल अम्र, लोगों से मशवरा कर लीजिए। फायदा क्या है जानते हैं? आपके साथी आपके साथ रहेंगे, आपका घराना आपकी बैकिंग करेगा, आपका साथ देगा। बेटा नहीं कहेगा अब्बू जान अगर मुझसे पूछे होते तो मैं ये मशवरा देता। बीवी कहेगी आपने तो मुझे इशारा भी नहीं किया, एक काम कर गए गुजरे और नुकसान हो गया आपका। लेकिन जब पूरा घराना मशवरा देगा, तो जिस वक्त आप नाकाम होंगे, आपको वहां कफे अफसोस नहीं मिलना पड़ेगा, और ना ही अफसुर्दगी होगी, और ना ही आपको गम दामनगीर होगी, क्योंकि सारे लोग एक साथ हैं। कुछ बात नहीं, घबराइए नहीं, दोबारा ऐसा करेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो जिस नबी पर कुरान नाजिल होता था, जिब्रील अमी आया करते थे सुबह शाम, उस नबी को हुक्म दिया गया कि लोगों से मशवरा कर लिया कीजिए, पर हम और आप मशवरा नहीं करते, डायरेक्ट काम करना शुरू कर देते। तो ये कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जैसे आया था वैसे मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मुश्किल मकामात से सबकी तफसीर की, सहाबा ने उस तफसीर को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया। तो हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी लिखी हुई किताब मुश्किल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि मैं आपके जहन को नहीं जानता, आपके दिल को नहीं जानता, आपके मुस्तवा आपके मयार को मैं नहीं जानता। लेकिन अल्लाह ने जो किताब भेजी है, अल्लाह ने जो कलाम नाजिल फरमाया है, वो हमारे और आपके जहन को जानता है। वो एक अमेरिका में रहने वाले आदमी के जहन को जानता है, वहां के माहौल को जानता है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाले, वहां परवरिश और पर्दाख्त पाने वाले आदमी के जहन को जानता है। वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाली इंसानियत को अल्लाह ताला जानता है। उस इंसानियत के लिए कलाम अल्लाह ने भेजा, लिहाजा उसका कलाम किसी के लिए मुश्किल नहीं हो सकता। मेरा कलाम मुश्किल हो सकता है कि बात अल्फाज आप ना समझ पाए, हो सकता है मैं समझा ना पाऊं, लेकिन अल्लाह ताला समझाने में कोताह नहीं है, और अपने बंदों के जहन को समझ करके, अपने बंदों के जहन के मयार को परख करके अल्लाह ने उनके लिए कलाम भेजा है, और कहा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, इस कुरान को हमने आसान किया है कोई नसीहत पकड़ने वाला। तो लोग तकरीर करेंगे, कहेंगे जानते हो 16 इल्म की जरूरत है कुरान पढ़ने के लिए। एक आम बंदा कहता भाई छोड़ो, कुरान हम कहाँ पढ़ सकते हैं, ये तो उलमा का काम है। नहीं मेरे प्यारो, आप बहुत लियाकत वाले हैं, आपके अंदर बहुत काफी सलाहियत है, आप अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे मसाइल कुरान में मौजूद हैं, बहुत सारी आयात कुरान में मौजूद हैं, जिसको एक डॉक्टर हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकता है, एक साइंस पढ़ने वाला हमसे कहीं ज्यादा बेहतर समझ सकता है, एक टेक्निकल लाइन का इंसान हमसे कहीं ज्यादा बेहतर उसको समझ सकता है। लिहाजा आप कुरान के करीब आइए और डायरेक्ट कुरान को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे मैं ये कहूं कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, इसमें कितने उलूम की आपको जरूरत पड़ रही है? अगर इस तर्जमा तक आप पहुंच गए कि ऐलान कर दो कि अल्लाह अकेला है, इसे समझने के लिए कौन सी परेशानी है? हाँ, बहुत सारे मकामात, उस्ताद चाहिए, मुफस्सिर चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, अदब चाहिए, नहव सर्फ चाहिए, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको समझने के लिए आपको किसी ना किसी उस्ताद की तरफ रुजू करना पड़ेगा। लेकिन कुरान के सारे मकामात ऐसे नहीं है, बहुत सारे मकामात हैं जिनको आप बआसानी समझ सकते हैं, और उसकी तफसीर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की भी नहीं, क्योंकि अरबी जुबान की वजह से उसको समझ लेते थे। उस कदर अरबी जुबान हमें और आपको आएगी
तो हम और आप भी उसे समझ लेंगे, या हमारी जुबान में अगर उस माने को कह दिया गया है तो भी हमारे नजदीक वो माना वाज़े हो जाता है कि हाँ, ये बात इसके अंदर कही जा रही है। तो हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये देख करके कि ये तो चंद पैसे की किताब है, लाओ खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं, आसानी देख करके कि कम पैसा लग रहा है, पता चला कि हमने कम पैसे का ख्याल किया और खरीद कर पढ़ना शुरू कर दिए एक रोड छाप किताब, तो मालूम हुआ कि हमारा अकीदा फासिद हो गया और इबादत का तरीका गलत हो गया। हम उमरा करने के लिए जाते हैं तो लोगों से कहते हैं, देखो 1 रियाल की किताब जब आप एहराम बांधेंगे तो बहुत सारे लोग ले लेकर के आएंगे, उस पर टाइटल लगा रहेगा सऊदिया अरबिया का, वजारतुल इस्लामिया का, और पता चला वो किताब छपी है पाकिस्तान में, वो किताब छपी है हिंदुस्तान में, और उसके अंदर वो सारी चीजें रहेंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, दूसरों का तरीका मौजूद है। तो आपने पैसा सर्फ किया है हरम आने के लिए। आजकल तो बहुत सारे इजरात हैं, उनके लिए कितनी परेशानियां होती हैं। तो आप 1 रियाल की वजह से अपनी इबादत को खराब ना कीजिए। आप देखिए हकीकत में कौन सी किताब बेहतर है, गर्चे उसकी कीमत ज्यादा है, उसको आप खरीदिए। ये हमें और आपको ये चीज समझ में आती है कि हम जब जाते हैं एक मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए, ठोकते हैं उसको, कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, कहीं झनका तो नहीं है, कहीं शगाफ तो नहीं है, आवाज सही आ रही है पकने की कि नहीं, कच्चा तो नहीं है, ये सारी चीज भापते हैं एक मिट्टी का बर्तन खरीदते वक्त। और दीन खरीदते हैं हम, और चंद पैसे की वजह से उसको चाहे जहां से खरीद लेते हैं, ये नहीं समझते हैं कि पक्का है कि कच्चा है, किसने ये सर्टिफाई की, किसने ये माना बयान किया, किसके तरफ से एक्सप्लेनिंग की गई है, किसकी तरफ से तशरीह की गई है, कुछ नहीं समझे बगैर हम और आप जहां पा गए मुफ्त में किताबें तकसीम होती हैं। आज नकली कुरान छप गया है, सोच लीजिए, नकली कुरान छप गया है, आप होशियार रहिएगा। डाउनलोड अगर हो जाता है नेट पे तो उसको मत पढ़िएगा। कुरान की बहुत सारी आयात हज़फ कर दी गई हैं। हिंदुस्तान के शियई शख्स वसीम रिजवी ने किताब बाकायदे दिखाया है, वाकया है कि मैंने छाप दिया इसको। क्यों छाप दिया मैंने? क्योंकि इसमें जो फला फला किस्म की आयतें थी, इसका इजाफा किया था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो मैंने उनको हज़फ कर दिया है। किसने आपको बताया कि यह आयत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाफा किया था? किसने आपको बताया कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को रखा था? किसने आपको बताया कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को रखा था? आप आलिमुल गैब हैं, आपके पास कोई सिलसिले सनद है इसकी? किस उस्ताद ने आपको बताया कि ये फला फला के इजाफे थे और मुख्तलिफ आयतों को हजफ कर दिया? लिहाजा आप होशियार रहेंगे कि मालूम हुआ कि वही नुस्खा आपको मिल गया, वही प्रिंट आपको मिल गया, और आपने पढ़ा, पता चला नहीं कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप आज आपको इसे भी देखने की जरूरत है, लेकिन याद रहे कुरान महफूज रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मुहाफिज है। वरना कुरान को अगर खत्म होना होता तो जिस वक्त दरियाए फुरात के सामने, दरियाए दजला के सामने बगदाद की लाइब्रेरी चंगेजियों के दौर में नजर आतिश की गई थी, और उसके राख को जब दरियाए दजला में फेंका गया था, मुर्रखीन लिखते हैं कि वो साइड काला हो गया था जहां किताबों का राख फेंका गया था। इतनी किताबें इस्लाम की जला दी गई, पर कुरान जैसे नाजिल हुआ था वैसे मौजूद है। आप परेशान नहीं होंगे, कुरान मौजूद रहेगा। बस थोड़ा सा आपको ख्याल करने की जरूरत है कि अब प्रिंट देख लिया कीजिए कि कुरान कहाँ का छपा हुआ है, किसने छाप दिया है। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम चीजों को कुरान और हदीस से लें। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है जिसको मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बसा औकात बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान और हदीस किसी न किसी के वास्ते से हमें और आपको लेना है। अगर इस वस्ताद समझते हैं तो ठीक है, वस्ताद जरूरी है, बहुत सारी गिरहें आप जुबान की बुनियाद पे, कवायद की बुनियाद पे, ग्रामर की बुनियाद पे नहीं खोल सकते जब तक कि वस्ताद ना हो। वस्ताद से आप मदद ली, लेकिन ये कहना कि उसी वस्ताद के मसलक पे हमें चलना है। अब कुछ मुसलमान बरादरान हो गए कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मानते हैं, उन्हीं के फ़िक़्ह को मानेंगे, उन्हीं की राय को मानेंगे। कुछ मुसलमान ये बावर करना शुरू किए कि हम इमाम शाफी रहमुल्लाह को मानते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। कुछ मुसलमान
इमाम मालिक रहमतुल्लाह को मानने के लिए तैयार हो गए। कुछ मगरिब में बसे हैं, कुछ मदीना में मौजूद थे उस वक्त, और कुछ मुसलमान इमाम सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को मानने के लिए तैयार। 4 मसलक में मुसलमान बट गए। गौर कीजिए, और इन्हीं चारों मसलक पर जो ना हो उसको आज के कुछ उलमा कहते हैं ये ला मजहबी हैं, इनका कोई मजहब ही नहीं। गौर कीजिए, एक नुक्ते की बात मैं बताकर फिर आगे चलता हूं। चारों अइम्मा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थे। चारों में सबसे पहले पैदा होने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है, नोमान इब्ने साबित। 80 हिजरी में उनकी पैदाइश हुई। अगर ये कहा जाए कि किसी न किसी इमाम को पकड़ ही करके दीन सीखा जा सकता है, तो 80 हिजरी से पहले जो लोग थे वो तो हनफी नहीं थे, वो तो मालिकी नहीं थे, वो तो शाफी नहीं थे, वो तो हम्बली नहीं थे। फिर भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन नास करनी, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो हमारी सदी के हैं। ना वो हनफी थे, ना वो मालिकी थे, ना शाफी थे, ना हम्बली थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? खैरुन नास करनी, सबसे बेहतर लोग मेरी सदी के लोग हैं, मेरे सहाबा सबसे बेहतर है। तो सहाबा ना हनफी थे, ना मालिकी थे, ना शाफी थे, ना हम्बली थे। अब अगर हम अपने आप को कहते हैं भाई हम तो किताब और सुन्नत पर चलने वाले हैं, जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मालिकी शाफी हम्बली नहीं कहा, ना ही सहाबा ने अपने आप को मालिकी शाफी हम्बली हनफी कहा, तो वो अगर कामयाब थे तो हम क्यों नहीं कामयाब होंगे? हमें लामज़हबी को कहा जाता है। हम आगे चलते हैं। इन इमामों का नाम लेकर के लोगों को धोखा दिया जाता है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूं होश में कह रहा हूं, और आप भी होश में सुनने की कोशिश कीजिए। इन इमामों का नाम लेकर के लोगों को धोखा दिया जाता है। कैसे धोखा दिया जाता है जरा देखिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इंतकाल 150 हिजरी में हुआ। उनके 3 शागिर्द मशहूर थे, इमाम अबू यूसुफ, याकूब नाम, याकूब इब्न इब्राहिम, मोहम्मद हसन शैबानी, जफर हुजैल। ये 3 शागिर्द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उनकी फिक्र को पूरी दुनिया में मशहूर कर, खास तौर से अबू यूसुफ जब बगदाद के अंदर उनको काजुल कुजात बनाया गया तो इसी फिक्र पर उन्होंने अमल किया, जिसकी वजह से फिक्र हनफी पूरी दुनिया में फैल गई। इन तीनों शागिर्दों ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद नहीं की। बुनियादी बात आप सुन लीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद इन तीनों शागिर्दों ने नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि हमारे उस्ताद ने तकलीद का हुक्म नहीं दिया। गौर कीजिएगा, ना ही इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का एक कौल तारीख में कोई साबित कर सकता है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहीं कहा हो कल्लिदूनी, मेरी तकलीद करो, कहीं भी नहीं। लिहाजा हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कही है उसको देखें क्या कही। कहते हैं इदा सहल हदीसु फहुआ मजहबी, जब सही हदीस हो तो मेरा मजहब। एक आदमी जो अपने आप को सलफी कहता हो, एक आदमी जो अपने आप को अहले हदीस कहता हो और हदीस पर अमल करता हो, गोया कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मसलक पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा है अगर सही हदीस हो तो मेरा मजहब। क्या मतलब? कि अगर ज़ईफ हदीस है तो वो मेरा मजहब नहीं हो सकता। मेरा फतवा अगर है तो उस मेरे फतवे को छोड़ दो। कहते हैं कि हराम है उस आदमी के लिए जो मेरे कौल से फतवा दे और उसको मेरी दलील का इल्म ना हो। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं, और पूरी जिंदगी किताब और सुन्नत की तरफ उन्होंने दावत दी और उसी पर उनका खात्मा हुआ, और कहीं उन्होंने तकलीद का हुक्म नहीं दिया और उनके शागिर्दों ने भी उनकी तकलीद नहीं की। खुद किताबों में मौजूद है कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह का कहना यह है, मजहब ये है, लेकिन अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं, जफर हुजैल ये फरमाते हैं, और मोहम्मद हसन शैबानी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं। तो जब हमारे इमाम ही ने नहीं कहा कि हमारी तकलीद करो, तो आज लोग कैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं और लेबल लगाते हैं कि हम हनफीउल मसलक के। आप मसलक नबी पर क्यों नहीं अपने आप को कहते? दूसरे इमाम जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के बाद आए इमाम मालिक रहमतुल्लाह थे, 179 हिजरी में इंतकाल हुआ, मदीना के अंदर रहते थे, इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के बगल में बैठते थे,
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بغل میں بیٹھتے تھے تو ان کا پچھلا حصہ جنوب کی طرف ہوتا تھا، اور جب پچھلا حصہ جنوب کی طرف ہوتا تھا تو دایاں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہوتا تھا. تو کہتے تھے لا تقلدونی. اور امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں، یہ مائکرو فون کا دور تو نہیں تھا نا، امام مالک رحمہ اللہ کے درس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے اور ایک آدمی مملی ہوتا تھا. مملی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مملی. مملی کے معنی املا کرانے والا. امام مالک رحمہ اللہ بولتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا، تو ان کی آواز اگر 500 لوگوں تک پہنچتی تھی تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ بولتا تھا امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، تو باقی لوگ سنتے تھے. اتنے لوگ موجود ہوتے تھے. ان سارے لوگوں کے بیچ میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کلنا یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہم میں سے ہر شخص ایسا ہے جس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کہ میری بات چھوڑی جا سکتی ہے، میرے شاگردوں سن لو، مگر اس قبر میں جو ذات تشریف فرما ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس ذات کی کوئی بات چھوڑے جانے کے لائق نہیں. پھر آپ کیوں مالکی اپنے آپ کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب مالکی کا؟ جب امام مالک رحمہ اللہ نے کہہ دیا میری بات چھوڑی جا سکتی، میں غلط کر سکتا ہوں، میں معصوم نہیں ہوں. اگر کسی کی بات ایسی ہے کہ کوئی بات چھوڑی جانے کے لائق نہیں تو اس قبر کے اندر مدفون ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے. پھر مالکی مسئلہ کیسے بن کر کھڑا ہو گیا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے تو کوئی مذہب ایسا نہیں بنایا کہ ہمارے پیچھے چلو، کہیں انہوں نے دعوت نہیں دی. تو کہتے تھے لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو. یہ امام مالک رحمہ اللہ اس کا فتویٰ دیتے تھے اور کہتے تھے السنت سفینۃ نوح. سنو میرے طلبہ، میرے شاگردوں سن لو، سنت سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. من رکبہا نجا، جو اس پر سوار ہوا وہ تو نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرقا، اور جو اس سے پیچھے رہا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو سنت کی روشنی میں جو زندگی گزارے گا کہیں نہیں ڈوبے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب دائی تھے. آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے پر چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال قابل اتباع ہیں، واجب الاتباع ہیں. ہمارے لیے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا اور آنکھوں کا سرما ہے. ان کے بغیر یہ ہمارے دل و دماغ کی روح ہے، اس کے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ سنت کی اہمیت بتائی. لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ کتاب و سنت کی قیمت ان ائمہ کے ہاں کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ ہے، محمد بن ادریس الشافعی المطلبی، جن کا انتقال 204 ہجری میں ہوا ہے. درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اذا تعارض کلامی بکلام اللہ والرسول فاضربوا بکلام الحائط. میرے شاگردوں، میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو میری بات دیوار پہ مارو، اور لو کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لو. یہ امام شافعی رحمہ اللہ چیخ چیخ کر اسی دنیا میں کہہ کر کے چلے گئے. اسے اگر آپ کو دیکھنا ہوگا، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح الجنہ الاحتجاج بالسنہ، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے، یہ سارے اقوال اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں آپ پائیں گے. تو جب امام شافعی رحمہ اللہ نے کہہ دیا میری بات جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو لینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، میری بات دیوار سے مارو. آج شافعی مسلک کے بہت سارے لوگوں کو سنیں گے آپ کہ عورت کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو چھو لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عروہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خالہ ہوتی، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور اپنی بعض بیویوں کو بوسا دیتے اور صلاۃ کے لیے نکل جاتے، وضو نہیں کرتے. تو کہتے ہیں کہ آپ ہی رہی ہوں گی، تو ہنسنے لگی. کیا مطلب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد بوسا دیتے بیوی کو اور صلاۃ کے لیے نکل جاتے، وضو نہیں کرتے. بوسا بغیر ٹچ کیے ہوتا ہے.
अब हनफी अब शाफी मसलक बना हुआ है क्या कि अगर औरत को छू लिया किसी ने तो वजू टूट जाएगा। एक साहब हमसे बात करने लगे तो मैंने कहा कि आप लोग हज करने जाते हैं या उमरा करने जाते हैं तो मताफ में तो औरत से टच हो जाता है बदन, तो आप लोगों का तो वजू ही फासिद हो गया। और अक्सर उलमा का कहना यही है कि तवाफ करते वक्त वजू शर्त है, तो फिर आप लोग उतर निकल करके वजू करते होंगे। तो कहीं नहीं नहीं वहां चलता है। मैं कहा कैसे चलता है? जब शाफी मसलक है कि औरत को किसी ने छू लिया तो वजू टूट गया। तो ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह का मसलक नहीं है, लोगों ने बनाया है, क्योंकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने तो कह दिया मेरी बात जब अल्लाह और उसके रसूल की बात से टकराए तो मेरी बात दीवार पे मारो, लेना किसे है? अल्लाह उसके रसूल की बात को लेना है। तो जब हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू करने के बाद बीवी को बोसा देते, सलात के लिए निकल जाते और वुदू नहीं करते, इसका मतलब औरत को छूने से वुदू नहीं टूटता है। तो फिर इमाम शाफी रहमहुल्लाह को दीवार बना करके और उसके ओट में खड़े होकर के लोग किताब और सुन्नत की मुखालफत। आखिरी इमाम जो आए वो इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, उनका इंतकाल 241 हिजरी में हुआ है। कहते थे इनकी सवान हयात कभी कभी आप लोग पढ़ा कीजिए, चारों अइमा की सवान हयात पढ़िए, जरा देखिए इनके यहाँ इत्तिबा सुन्नत कितना है और अल्लाह ताला की किताब की इत्तिबा इनके यहाँ किस तरह है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत इनके यहाँ किस तरह से कूट कूट कर भरी हुई है, जो हमारे यहाँ और आपके यहाँ नहीं पाई जाती। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह कहते थे ला तुकल्लिदू, मेरी तकलीद मत करो। और तकलीद जानते किसको कहते हैं? किसी की बात को बगैर दलील के ले लेना। मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, दलील की रोशनी में कह रहा हूं, इसे आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मुकल्लिद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप बात को ले रहे हैं दलील की रोशनी में। किसी की बात को अपने गले में डाल लेना बगैर दलील के। तो क्या कहते हैं इमाम सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, ला तुकल्लिदूनी, मेरी तकलीद मत करो, वला तुकल्लिदू मालिकम वला शाफिय्या वला औज़ाइय्या, ना इमाम मालिक की और ना शाफी की ना औज़ाई की। औज़ाई ये शाम वालों के इमाम, बहुत बड़े आलिम, इनकी भी तकलीद मत करो। बल खुजू मिन हैसु अखदू, वहीं से लो जहां से इन्होंने लिया है। ये अइमा कहां से लिए? कुरान से लिए, हदीस से लिए। आप भी कोशिश कीजिए कि किताब और सुन्नत के रोशनी में जिंदगी गुजारें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। मुसलमानों में कहीं जुबान की बुनियाद पे बटे हुए हैं, कहीं फिक़ही मसलक की वजह से बटे हुए हैं, कहीं नेशनलिटी की वजह से बटे हुए हैं। आजकल तो पता नहीं बरादरी और खान और पठान के नाम पर तमाम मुसलमान बटे हुए हैं। नहीं, मुसलमानों को अगर कोई चीज मुत्तहिद कर सकती है तो अल्लाह की किताब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इन्हीं दोनों पर अगर हम और आप आए और इन्हीं की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें तो इसमें कोई शक नहीं, जो सोर्स, जो ताकत, जो कुव्वत किताब और सुन्नत से निकलेगी वो यकसा होगी, उसमें इख्तलाफ नहीं रहेगा। इसी पर सहाबा थे, उनके माबैन झगड़े इस तरह से नहीं थे जिस तरह से आजकल हम एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि अइम्मा के नजदीक भी कुरान हदीस को हम समझें, खुद किताब और सुन्नत के जरिए से हम ये समझने की कोशिश करें कि किताब और सुन्नत किस चीज के नाम है। एक आयत में जिक्र करता हूं, अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोग इत्तिबा करते हैं तो तहत हिदायत पा जाओगे। मैं आयत पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, जरा देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइन तुतीउहु तहतदु, अगर तुम इस रसूल की इत्तिबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, राह मिल जाएगी, भटकोगे नहीं, भूल भुलैयों में नहीं, शिर्क व बिदात के हचकोले नहीं खाओगे। इसी रसूल की इत्तिबा करो, कामयाब हो। ये रसूल भेजा ही इसलिए गया था, किस लिए? वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, ऐ नबी हमने ये जिक्र कुरान आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों से बयान कर दें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को बयान किया है, अमली तौर पर, कौली तौर पर। आपकी पूरी सुन्नत कुरान को समझने के लिए चिराग है। इस सुन्नत को उठाइए और चिराग दिखाइए, अभी कुरान की आयत के मानी मफाहिम आपके जहन में आने शुरू हो जाए। तो हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अइम्मा ने जब कुरान हदीस को दर्जा दिया तो हम और आप भी वही पोजीशन किताब सुन्नत को दें जो इमामों ने दिया है।
اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اور آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور وہاں سے اپنی باتوں کو لیں جہاں پیور کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں بتائی جاتی ہوں۔ آخری بات میری ہے ایک، قرآن کے تعلق سے آپ کو پتا چل جائے، آپ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی کتاب جہاں قرآن یہ جہاں سے چھپا ہوا ہے قابل اعتماد ہے، آپ لے لیجئے قرآن، ساری آیات اس کے اندر درست ہے، اس میں کوئی دقت نہیں، اس کے روشنی میں آپ عمل کرنا شروع کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف جب آپ آئیں گے تو وہاں ایک چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، ائمہ نے جس طرح سے ان کے اساتذہ نے حدیثوں کو بیان کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں رکھ دیا، کچھ لوگوں نے کہا خالی صحیح حدیث رکھیں گے، کچھ لوگوں نے جو ملا رکھ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ، ان دونوں صاحبان نے صحیح حدیث کو رکھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب میں سب صحیح ہے کیونکہ امت نے اجماع کیا، اکٹھا ہو کر کے پوری امت نے کہا کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر امت اکٹھا ہوئی کہ امام بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہے تو امام بخاری کی کتاب اٹھائیے، اس سے اپنے مسائل پڑھنا شروع کر دیجئے، ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ یقین مانیں ایک عام آدمی بہت ساری چیزیں حدیث کے ترجمہ سے سمجھ سکتا ہے، ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ سنن اربع، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن سعید بن منصور ہے، سنن دارقطنی ہے، اور اسی طریقے سے سنن دارمی ہے۔ اس طرح کی کتابیں، یا مسند احمد بن حنبل ہے، اور امام بیہقی کی کتابیں ہیں، علامہ طبرانی کی معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ اس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اگر صحیح ہوگی تب آپ عمل کریں گے، وہ حقیقت میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے۔ خالی کتاب میں موجود ہونے کی وجہ سے اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں مانیں گے جب تک کہ سند ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث صحیح کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں۔ سند ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کٹی نہ ہو، جس نے بیان کیا ہے وہ عادل ہو، جس نے بیان کیا ہے وہ ثابت ہو، اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، اس کے اندر کوئی علت بیماری نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں جب پائی جائیں گی تو حدیث صحیح ہوگی۔ انہی 5 شرطوں میں سے ایک جس حدیث میں نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، گرچہ سند دکھے گی، گرچہ عبارت دکھے گی، عربی میں موجود رہے گی، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں۔ کیا مطلب؟ سند اس کی متصل ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے لوگوں نے بیان کیا، صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا، شیخ الشیخ نے سنا، شیخ نے سنا، امام بخاری نے سنا۔ اب امام بخاری سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہے۔ تحقیق کیجئے تو پتہ چلتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، ہاں یہ فلاں کے استاد ہیں، ہاں یہ فلاں کے استاد ہیں، یہ فلاں کے استاد ہیں، نام موجود ہے، درج کیا گیا۔ عادل ہو راوی، عادل کا مطلب یہ ہے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اسباب فسق، خوارم مروت سے بچا ہوا ہو، پاک ہو، عاقل، بالغ، مسلم۔ اس کا مطلب مسلم نہ ہو تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، بالغ نہ ہو، بچہ ہو سکتا ہے بھول گیا، اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ جب بیان کرے گا تو ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو، سند متصل ہو، عادل ہو، ضابط۔ ضابط کا مطلب ذہن میں ضبط کیا ہو، محفوظ کیا ہو، تو جب چاہے جب حاضر کر لے تو گویا کی ضبط ہے۔ یا قلم سے قلم بند کیا ہو، نوٹ کیا ہو، وہ استاد کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہو، پھر مقابلہ کیا ہو کہ ہاں جیسے میری بات ہے ویسے استاد کی بات وہاں موجود ہے، تو وہ اپنی کتاب سے لے کر بیان کرے یا اپنے ذہن سے بیان کرے، اس کو ضابط کہتے ہیں۔ بھول گیا، کتابیں جل گئی، ٹینشن کی وجہ سے بھول گیا، دکان جل گئی، ٹینشن ہو گیا، محدث کو بھول گیا، زیادہ عمر ہو گئی، اب ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اس میں بیان کر دیا کوئی حدیث، اب قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ ضبط ہونا ضروری ہے، چاہے ضبط صدر ہو، چاہے ضبط کتاب ہو، یعنی چاہے کاپی پر لکھا ہو، چاہے سینے میں محفوظ کیا ہو، تب اس کی حدیث قابل قبول ہے۔ اور شذوذ کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ جو بیان کر رہے ہوں وہ ہم مخالفت نہ کر رہا ہوں، گرچہ ثقہ ہے۔ ایک محفل میں بات بتائی گئی، 10 آدمی ایک بات کہہ رہے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں ہم نے ایسا سنا ہے، تو بھائی اگر ایسی بات کہی گئی ہوتی تو باقی 10 لوگ کیوں نہیں سنتے؟
اور पता चला मुखालफत भी कर रहा है, तो ऐसे शख्स की बात नहीं ली जाएगी। और इल्लत का मतलब है कोई बीमारी हो, कोई कमजोरी हो, जिसको बड़े बड़े अइम्मा जैसे इमाम बुखारी, अली बिन मदीनी, अबू जुरा राजी, अबू हातिम राजी, इमाम तिरमिजी, इमाम दारुकुतनी, ये बड़े बड़े लोग हैं जो बारीक बारीक कमजोरियों को हदीस के अंदर से निकाल करके सामने रख देते हैं। तो ऐसी कोई कमजोरी उस हदीस के अंदर ना हो जिसको मुअल्लल कहते हैं। तो आमतौर पर कहा जाता है, अरे आप अपनी बात को कभी कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को ज़ईफ कहते हैं। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है ही नहीं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो। सुन्नत तिरमिज़ी की एक रिवायत में बताता हूँ, सबसे अफजल शख्स जिस पर सूरज तुलू हुआ है वो उमर बिन खत्ताब है। ये सुनने तिरमिज़ी की रिवायत हदीस है। क्या? सबसे बेहतर जात, अफजल जात वो है, सूरज जिस पर तुलू हुआ है वो उमर बिन खत्ताब। ज़ईफ हदीस है। माना के एतबार से भी आप समझते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला नहीं है, वो दूसरे नंबर पर है। और इस हदीस में क्या है कि जितने लोगों पर सूरज तुलू हुआ है सबसे बेहतर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस ज़ईफ है। इसी तरीके से इब्न जौजी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल-मौदूआत में जिक्र की है, इज़ा रअयतुम मुआविया अलल मिंबर फक़्तुलूह, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अगर मिंबर पर देखो तो कत्ल कर दो। अरे ऐसे कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे? वो साहबी रसूल हैं, कातिबान वही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बहन मंसूब थी, मुसलमानों के रिश्ते में मामू होते हैं। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म क्यों देंगे? ये बातिल है, मौदू है। लेकिन इसकी सनद भी देखेंगे, इबारत भी देखेंगे, एक आदमी समझेगा कि हाँ भाई किताब में तो मौजूद है। नहीं, किताब में मौजूद होना काफी नहीं है, ये जरूरी है कि 5 शर्तें उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। मैंने बताया कि इसमें वज़्ज़ाक़, कज़्ज़ाब, दज्जाल लोगों ने इसको गढ़ी है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ। एक हदीस लोग पेश करते हैं, जिसने आमीन कहा उसके मुंह में आग डाला जाएगा क़यामत के दिन। देखिए फ़िक़ही मसलक वालों ने गढ़ लिया इसको, हदीस को, ज़ईफ़ है, बातिल है। दूसरी हदीस में है, मन रफ़अ यदैहि फ़ी सलात फला सलात लहू, जिसने रफ़अ यदैन किया है सलात में उसकी सलात कबूल ही नहीं है। ये हदीस नहीं है, लोगों ने गढ़ा है इसे। अलबाज़नजान शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन, ये बैगन जिसके अंदर हर किस्म की बीमारी की शिफा है। ज़ईफ़ है, मौदू है, बातिल है। ये सब्जी बेचने वालों ने हदीस गढ़ ली है। गौर करने का मकाम है। तो अपने अपने मंशा के मुताबिक, अपने अपने राय के मुताबिक, अपने माल की सप्लाई की खातिर ऐसे हदीसें गढ़ी गई हैं। अब आप कहते हैं ये भी हदीस है, ये भी हदीस नहीं। आपको परखना होगा कि हदीस सही है कि ज़ईफ है। वरना बैगन के अंदर तो लोग बीमारी बताते हैं, खुजलाहट बताते हैं। अब क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया क्या कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल बाज़नजान शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन, ये बैगन इसके अंदर हर बीमारी की शिफा है। अब एक दुकानदार बैगन बेच रहा था और यही हदीस बोर्ड पर लिख रखा था, कहा देखो भाई बड़ी फजीलत है बैगन की, खरीदो। अब जो नहीं आदमी समझता है, हाँ बिल्कुल भाई देखो हदीस के रोशनी में बैगन बेहतर है, तो ये हदीस हदीस नहीं है। लिहाजा हम इस ख्याल में ना रहें कि किसी हदीस की किताब के 2 दफ्तियों के बीच में जो है सब कुछ सही है। नहीं, तहकीक करनी पड़ेगी, तब हम आप उसको हदीस कहेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जब तक जिंदा रखे मौला कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मुसलमानों को आपस में मौला एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।